بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میری عمر کوئی 13-14 سال ہوگی۔ 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ہماری کافی زمین تھی۔ 2 بھائی شہر میں پڑھتے تھے، باقی 5 ذمہ داری اور کاشتکاری ہی کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ڈیرے کے نزدیک کوئی آبادی نہ تھی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک ٹیوب ویل تھا، باقی ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ ٹیوب ویل کا آپریٹر بہت ہی شریف اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتا اور کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو لمحوں میں اس کی دیوانی ہو جاتی، مگر اس میں ایک خامی یہ تھی، اور وہ خامی اس کی غربت اور اس کا خاندانی پس منظر تھا۔ وہ ہمارا مزارع تھا، مگر ہم اسے گھر ہی کا فرد سمجھتے تھے۔ ہم اسے ہر کام میں مشورہ کرتے، وہ بھی ہم سب گھر والوں سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ خیر، ان دنوں میری 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں۔ میں اسکول کا کام کرنے بھی بھائی کے ساتھ ٹیوب ویل پر چلی جاتی تھی۔ وہ مجھے پڑھائی کے علاوہ دینی تعلیم دیتے اور مجھ سے بڑا ہی پیار کرتے۔ اس سال میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی تو وہاں میری عمر کا ایک اور لڑکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ہمارے ٹیوب ویل آپریٹر کا چھوٹا بھائی وقاص ہے، اور 2 ماہ کی چھٹیوں میں وہ بھی یہیں رہے گا۔ وقاص تو اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم چند دنوں میں گھل مل گئے اور اکٹھے پڑھتے پڑھتے اور کھیلتے کھیلتے ہماری کافی بے تکلفی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری عمر کا ایک ساتھی مجھے مل گیا تھا۔ 2 ماہ پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ وہ اگلے سال بھی آیا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھے کافی دکھ ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ یہیں رک جائے اور یہاں ہی پڑھے، مگر یہ سب کچھ میرے دل میں ہی رہ گیا اور وہ چلا گیا۔ یوں میں آئندہ سال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے اکثر اس کی یاد آتی۔ سال گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہماری یہ زندگی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہم تجربوں اور ٹھوکریں کھانے اور سنبھلنے میں گزار دیتے ہیں۔ وقاص صاحب جب 4تھی مرتبہ اپنے بھائی کے پاس 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آئے تو کافی خوبصورت اور کافی ہوشیار اور چالاک ہو چکے تھے۔ پھر یہ دیکھنے سمجھنے کی عمر میں بھی پہنچ گئی تھی۔ وقاص بھی بدل چکا تھا۔ بات چیت کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز کافی عجیب تھا۔ اس میں وہ والی معصومیت نہیں رہی تھی، مگر میں پہلے جیسی تھی۔ امی میری آزادی اور بے باکی پر نکتہ چینی کرنے لگی تھیں۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی نئی بات ہو رہی ہے جو امی ہر وقت اعتراض کرنے لگی ہیں۔ کاش میں اس وقت کچھ سمجھ جاتی، یا پھر ٹھوکر لگانے والے اشارے دینے والے ٹھیک طرح سے ٹھوکر لگاتے تو میرے کان کھل جاتے، یا پھر اپنوں کو بہت زیادہ بھروسہ تھا، ورنہ وہ میری حفاظت ضرور کرتے۔ مجھ پر بھی کوئی پابندی نہ تھی، ان کی لاپرواہی تھی کہ وقاص گھور گھور کر مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا اور میں نادان سب کچھ دیکھتی اور کچھ نہ سمجھتی۔ اور پھر میری عمر 17 برس تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اصولاً تو سمجھ لینا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں بڑی نادان تھی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملتا یا تنہائی میسر آتی، میں دوڑی ہوئی وقاص کے پاس چلی جاتی۔ وہ کہتا، اب زیادہ ادھر ادھر مت پھرا کرو اور گھر پر رہا کرو، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ مگر مجھے کسی کی بات سمجھ نہ آتی۔ ایک دن مجھے وقاص نے بتایا کہ وہ اگلے سال یہاں نہیں آؤں گا۔ میں تو اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ میں فرسٹ ایئر میں چلا جاؤں گا اور کسی دور کالج میں داخلہ لینا پڑے گا۔ میں اس کی آواز میں سمٹا درد سمجھ گئی۔ مجھے لگا وہ واقعی پریشان ہے۔ تو وقاص، تم یہاں ہی بھائی جان کے پاس رہنے لگ جاؤ نا، اکٹھے کالج جائیں گے اور ملتے بھی رہیں گے۔ کہنے لگا، بھائیا نہیں مانیں گے، اور پھر ان کی نوکری کا کیا بھروسہ، کل تبادلہ ہو جائے، لگتا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں مل سکیں گے، اور اگر ایسا ہی ہوا تو شاید میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ نہیں وقاص، ایسا مت کہو، میں بھی تمہارے بغیر تو نہیں رہ سکتی۔ میں بھی روحانسی ہو گئی، لیکن یہ سب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے بغیر رہنا ہی پڑے گا۔
वो दूर दूर खलाओं में घूरता हुआ बोला, तुम कुछ कर सकती हो कौसर? ये कहते हुए उसने सवालिया निगाहें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी खातिर इस नहर में छलांग लगा सकती हूँ वकास, अगर कहो तो अभी लगा दूँ। वो बोला, नहीं पगली, छलांग नहीं लगानी, तुम्हें शादी के लिए घर वालों को राज़ी करना है और मेरा इंतज़ार भी करना है। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। ये तो कोई बड़ा काम नहीं, मैं आज ही घर वालों से बात करूँगी। मैंने फ़ौरन वकास को उम्मीद दिलाई, नहीं अभी नहीं, जब तुम्हें मैं कहूँगा तब बात करना। फ़िलहाल तुम ये करो कि रात को मुझसे मिलने आया करो, दिन को कोई काम की बात नहीं हो सकती। क्या ख्याल है, आओगी ना? मैंने कहा, रात तो बहुत मुश्किल है, सब लोग घर पर होते हैं, उन्हें पता लग गया तो मेरी शामत आ जाएगी। कहने लगा, अरे तुम छलांग लगाने को तैयार हो और रात को आने से डरती हो, दावे तो बड़े करती हो कि मुझसे प्यार है। मैंने उसकी ये बात सुनी तो मुझे भी जोश आ गया। बोली, आऊँगी वकास, बताओ कहाँ आना है और हम क्या बातें करेंगे। ये पूछते हुए मैं भी हैरान थी कि वो कौन सी बातें हैं जो दिन को नहीं हो सकती। काश मेरी थोड़ी तरबियत हुई होती तो मैं ना जाती। कहने लगा, वो सामने खेत के पास रात 12 बजे के बाद जब सब घर वाले सो जाएं तो तुम खेत में मुझसे मिलने आ जाना। खबरदार, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैंने भी हामी भर ली, ठीक है मैं आऊँगी। मैं चली गई। अंधेरा फैलते ही मुझे एहसास हो गया कि ये काम इतना आसान नहीं जितना मैं समझ रही थी। मैं मजबूर तो बहुत थी, मगर ऐसा बहरहाल मुझे करना था। मैं वकास को उदास नहीं कर सकती थी, ना ही उसकी कोई बात टाल सकती थी। जब घड़ी की सुइयों ने 12 बजा दिए तो मैं उठ बैठी। सर्दी की वजह से खून तो रगों में जम रहा था। मैंने खुद को हौसला दिया। गो ये काम इंतहाई मुश्किल था, मगर नहर में छलांग लगाने वाले के लिए तो आसान था। मैंने जो वादा कर लिया तो फिर पूरा करके ही दम लिया। वकास पहले ही मेरा मुंतज़िर था। मैं हौलती लड़खड़ाती घर पहुंच गई। रात में उसी खामोशी से वापस घर पहुंची जैसे निकली थी। सब लोग सो रहे थे, लेकिन मुझे उनका इतना एहसास न था। मैं तो आज नई दुनिया की सैर करने को गई थी। इतने कड़ियल और जवान 7 भाइयों की इकलौती बहन रात की तारीकी में उनकी इज्जत और गैरत के परखच्चे उड़ाकर आ गई थी। शायद इसलिए कि वो लाडली और इकलौती थी, बहुत प्यारी भी थी। इसी वजह से सब सुकून से सो रहे थे। फिर वकास जब तक गांव में रहा हम चोरी छुपे मिलते रहे, लेकिन बहुत जल्द घर वालों को खबर हो गई और मुझ पर पाबंदियां लग गईं। लेकिन उन्हें क्या खबर कि हम तारीक रातों का सीना चीरते रहते हैं। मगर ये पाबंदियां सिर्फ डांट टपट तक ही महदूद रहीं। थोड़ी सी जुदाई सही तो मैंने वकास से कह दिया, वकास अब तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती, ना ही तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। जिस दिन सुबह उसे जाना था, रात को मैंने कहा, या तो हमारे वालिदैन से शादी की बात करो या तो फिर मुझे छोड़कर मत जाओ, इस तरह मैं तुम्हें जाने भी न दूंगी। दूसरे अल्फाज में गोया मैंने धमकी दी थी। उसने बड़ी तावीलें पेश की, मजबूरियां बताईं, लेकिन मैं तो कुछ सुनने को ही तैयार न थी। मैं बहुत दूर निकल चुकी थी, मुझे कुछ दिखाई न देता था। यही वजह थी कि मैं उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। आखिर फैसला हुआ कि सुबह इफ्तिखार भाई से बात करेंगे। जब उन्होंने हम दोनों से बात की तो वो उछल पड़े, डंडा उठाया और मेरे सामने वकास की अच्छी खासी पिटाई कर दी। मुझे भी बुरा भला कहा, लेकिन फिर उन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया। फिर तो मेरे घर में कयामत टूट पड़ी। इससे पहले कि मेरे भाई मुझे जिंदा दफन करते, मैं उनके पांव पड़ गई और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग ली। अगर उन्हें पता चल जाता हम क्या कुछ कर चुके हैं तो मेरा अंजाम देखकर न जाने कितनी सदियां वो धरती कांपती रहती। उनके ख्याल में तो सिर्फ ये था कि शायद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, और फिर ये सब कुछ देखकर भी अगली रात हम वो मंसूबा तरतीब दे चुके थे जो असल से होता आया है। राह फरार का जो कुछ घर से मिल सका मैंने ले लिया। फिर अगली रात हम 6 मील का पैदल सफ़र करके करीबी शहर पहुंच गए और वहां से रातों रात कराची पहुंचे। वकास शायद मेरा साथ न देता, मगर दूसरी सूरत में उसका जो अंजाम होता वो भी जान चुका था, सो वो भी मजबूर था। हमारे लिए ये सब कुछ नया था, लेकिन हम अपने किए के हाथों मजबूर थे। ये सब किया दरा वकास का था और मुजरिम मैं भी थी। मैं ना चाहती तो उसके इख्तियार में क्या था।
सुबह 7 बजे हम लोग ट्रेन से रवाना हो चुके थे। गाड़ी चल पड़ी तो हमने सुख का सांस लिया। यकीन सा हो गया कि खतरा टल चुका है। जिंदगी में पहली मर्तबा मैं जी भरकर रोई थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था और फिर ये कोई मामूली हमाकत नहीं थी। मैंने पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया था। मैं ज़रा सी दुखी होती थी तो मेरे भाई ज़मीन हाथों में उठा लेते थे। बूढ़ी और ज़ईफ़ माँ जिसने न जाने कितने मुसाइब झेल कर मुझे पाला था, फिर बूढ़ा बाप जिसकी आंखों का मैं नूर थी, उसमें कोई शक नहीं था। हालांकि गांव के लोग बेटियों पर एतबार नहीं करते थे, मगर खुदा जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे माँ बाप की मोहब्बत भी न याद आई। मोहब्बत के जाल में आकर मैं सारी हुदूद भूल गई थी, और भूली भी किसके लिए थी, जिसके पास न रहने का ठिकाना था न खाने को रोटी थी। उसने मुझे एक दोस्त के घर में ठहराया था। मैंने उसे अपने ठिकाने का बंदोबस्त करने का कहा तो बोला, देखो कौसर, इतनी जल्दी कोई और बंदोबस्त नहीं हो सकता। हमें मकान के अलावा एक आध इंसानी सहारे की भी ज़रूरत है। इतने बड़े शहर में हमारा कोई वाकिफ़ भी नहीं। कुछ ना कुछ तो करना है ना। ये कहते हुए वकास तकरीबन रो दिया। मुझे भी उसके इस अंदाज पर तरस आ गया। मैंने उसे सहारा दिया, लेकिन जब काफ़ी दिन गुजर गए उसने दोस्त का घर ना छोड़ा तो मुझे उलझन होने लगी। मैं क्या कर सकती थी? मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर थी। अब मैं घंटों रोती रहती और अपनी ही गलती पर खुद पछताती रहती थी। वकास का दोस्त जिसने हमें अपने घर में पनाह दी थी, वो मुझसे इस एहसान का बदला लेना चाहता था। वकास बिल्कुल भी वैसा न था जैसा मैंने सोचा था। एक दिन मैं किचन में खाना पका रही थी। 3 गज के फासले पर कमरे में वकास लेटा हुआ था कि किचन में इश्तियाक आ गया। वो काफ़ी हवास बाख्ता लग रहा था। मैं जानती थी ऐसा बहुत जल्द होने वाला है, इसीलिए मेरे लिए ये कोई अनहोनी नहीं थी। मैं पुरसुकून थी कि मेरा मजाजी खुदा मेरे सर पर मौजूद है, मेरी इज्जत का रखवाला है, मेरा मुखाफिज है। भूख लगी है भैया, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, जबकि मैं उसे देख चुकी थी। वो समझ पा रहा था कि मैंने उसे देखा नहीं। वो थोड़ी देर मुझे देखता रहा। बिलाखिर मुझे निगाहें उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालना ही पड़ी। क्या बात है इश्तियाक, यहाँ क्यों खड़े हो? भूख लगी है क्या? जवाब में उसने इंतहाई बेहयाई से कहा, मुझे तो तुम्हारी भूख लगी है। मैं आपकी बहन हूँ इश्तियाक भाई, और आपके दोस्त की इज्जत हूँ। मैंने सूरत हाल मिटाने की कोशिश की कि वो संभल जाए। मैं सोच चुकी थी ये सब कुछ फजूल है, फिर भी मैंने कह दिया। इश्तियाक अपनी मूँछों को ताव देते हुए बोला, कैसी बहन और कौन भाई? ना तुम मेरी बहन हो और ना मैं तुम्हारा भाई हूँ। खुदा ना करे मेरी बहन ऐसी हो। उसने अजीब से लहजे में कहा तो मुझे खुद पर घटिया होने का गुमान हुआ। वाकई घर से निकली लड़की की कोई इज्जत नहीं। फिर वो मेरे करीब आना चाह रहा था कि मैं भागकर किचन से निकल गई और वकास को आवाज़ देने लगी, देखो वकास, ये क्या कर रहा है? तुम्हारे दोस्त को ज़रा परवाह नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? मेरी तवक्का के बरखिलाफ वकास के चेहरे पर इत्मीनान था। हाँ तो क्या हुआ, बीवी तो तुम मेरी हो, मगर ये भी मेरा दोस्त है। उसने इतना कहा था कि मैंने एक लकड़ी का डंडा लिया और उसके दोस्त का सर लहू लहान कर दिया। मैंने वकास को खूब बुरा भला कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे हौसला देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो ही मेरा मुहाफिज था जो अब मेरा लुटेरा बन चुका था। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा मैं बेहोश हो गई हूँ। जब मेरी आँख खुली तो घर में कोई नहीं था। मेरे सर पर हज़ारों आंधियाँ और तूफ़ान बर्पा हो चुके थे। मैं नहीं जानती थी अब मैं कहाँ जाऊँगी। आखिर मैंने तय किया कि मुझे मरना है, मगर मौत भी सस्ती नहीं, कुछ कीमत लगवानी पड़ती है। अगली सुबह वकास अस्पताल से आया और छूटते ही कहने लगा, कौसर तुमने अच्छा नहीं किया, वो हमारा मोहसिन था, अगर तुम उसकी बात मान लेती तो क्या फ़र्क पड़ता। वकास की ढटाई पर मैं हैरान रह गई। वकास तू इतना बेगैरत होगा? उसके आगे मैं कुछ सुन न सकी। वकास ने जो कहा मुझे तो उससे सुनकर ही नफ़रत होने लगी। हाँ, उसके लिए लाया हूँ। वो धाड़ा था। मैं ज़हनी तवाज़न खो चुकी थी। चारपाई पर धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई। होश आया तो वो जा चुका था, बेशक अस्पताल ही गया था। मैंने फैसला किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ अपने शौहर के घर में इज्जत ही महफूज ना हो, तो ऐसे घर में रहना कोई मायने नहीं रखता।
वकास ने तो साफ कह दिया था कि ये उसकी मजबूरी है और वो मेरे लिए कोई और घर नहीं ढूंढ सकता। वो इसी घर में रहेगा जो कि महज एक कमरे पर मुश्तमिल था। उसी रात मैंने सोचा मैं इस घर से निकल जाऊंगी, मगर इससे पहले कि मैं दरवाजे से कदम बाहर रखती, दरवाज़ा खुला तो 2 नकाबपोश मेरे सामने थे। मैं खौफ से लरस कर रह गई, लेकिन जल्दी संभल गई। इससे पहले कि वो मुझसे या मैं उनसे कुछ पूछती, उन्होंने मुझे गाड़ी में उठाकर डाल दिया और मुझे डराने धमकाने लगे। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। होश आया तो एक कीमती बेडरूम में थी। मेरे सामने वाली कुर्सी पर कोई बैठा सिगार पी रहा था। मुझे होश में आता देखकर बोला, लड़की, तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये बंगला बहुत बड़ा है जिसके बेडरूम में तुम मौजूद हो। मैंने तुम्हें 60,000 रुपये में ख़रीद लिया है। मैं कभी कभार आऊँगा। तुम माजी को भूल जाओ, नई ज़िंदगी से समझौता करने की कोशिश करो। यहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नौकर खिदमत के लिए हाजिर हैं। हर चीज़ तुम्हें इशारा करने पर मिल जाएगी, मगर कोई ऐसी वैसी हरकत न करना कि खुद ही पछताना पड़े। अब मैं तो चोटें खाने की इतनी आदी हो चुकी थी कि मुझ पर इस इंकशाफ पर कोई बिजली न गिरी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कम अज़ कम घर नहीं तो एक तहफ़्फ़ुज़ ही मिल गया। मैं काफ़ी देर बैठी रोती रही, फिर एक झनाके से उठ बैठी। चलो ज़िंदगी को अपने अरमान पूरे कर लेने दो। मैं हालात से समझौता करूँगी। जो कोई भी है मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ बखेरेगा, मगर घर तहफ़्फ़ुज़ तो देगा, ज़रूरतें पूरी करेगा। ऐसे भी नहीं तो मेरे पास क्या रह गया था, बस एक सदमा मुझे संभलने नहीं दे रहा था। एक शख्स भाग गया और दूसरे ने मुझे ख़रीद लिया। हाँ, मगर इस घर में मैं मालकिन की तरह रहती थी। मेरा हर चीज़ पर कंट्रोल था। हर वक्त नौकर मेरे हुक्म को मुंतज़िर रहते थे। ज़िंदगी यूं ही मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। दुख बांटने वाला कोई नहीं था, बाकी सब कुछ था। शाम को ड्राइवर मुझे सैर तफरी के लिए ले जाता। ज़िंदगी अजीब सी मोड़ पर आ गई थी, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। आम हालात में मेरी ज़िंदगी काबिल रश्क थी। ज़िंदगी मखसूस दायरे में घूमती रही। मेरे अंदर अलाव पकता रहा। मैंने भी नोट देकर अपने ड्राइवर को काबू कर लिया। उससे मैंने इश्तियाक की खबरगिरी करवाई और जल्दी ही ये पता चल गया कि इश्तियाक भी सेठ साहब का कारिंदा है। मगर ऐसा है तो सेठ साहब ने 60,000 रुपये उसे किसके लिए दिए? वो ऐसे भी उससे छीन सकते थे मुझे। ये बात तो मेरी समझ में न आ रही थी। अब मैंने ड्राइवरी भी सीख ली और ख़ुद गाड़ी चलाने लगी। मैंने कहीं जाना होता तो ड्राइवर को ज़हमत न देती। मैं दिन रात इश्तियाक की तलाश में थी, मगर वो भी कोई आम कारिंदा नहीं था, वरना इस मामूली से मकान में न रहता। जबकि दूसरे मुलाजिम अच्छे खासे मालदार लोग थे, दौलत की रेल बेल थी। इस ज़िंदगी को धुतकारना इतना आसान न था, मगर मैं अपनी बर्बादी कैसे भूल जाती। मुझे अपने पूरे घर का हिसाब लेना था। फिर जब सेठ साहब एक बहरून मुल्क के टूर पर गए तो मुझे मौका मिल गया। वकास का एड्रेस तो वैसे ही मेरे पास था। इफ्तिखार भाई जब ख़त लिखते तो मैं पढ़ती रहती थी। उनके घर का पता मुझे याद हो गया। जितना अपने घर का याद न था, वकास के घर का उससे ज़्यादा याद था। मैं जब वकास के घर पहुंची तो यहाँ का मंजर ही बदला हुआ था। वकास की शादी के शादियाने बज रहे थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था। एक औरत से मालूम हुआ कि आज वकास का निकाह है। मुझे डर था कहीं वकास मुझे देख न ले, गो कि मैंने अपना हुलिया काफ़ी बदल रखा था। मैं एक घर के अंदर घुस गई थी। गैस वगैरह जलने तक मैं एक महफूज जगह छुप चुकी थी। मुझे काफ़ी देर छुपना पड़ा। हुस्ने इत्तेफाक कि जहाँ मैं छुपी थी करीब ही दुल्हन का कमरा था। फिर वो वक्त आया, वकास साहब सामने से आते दिखाई दिए और साथ वाले कमरों में दाखिल हो गए। मुझे आज कोई डर नहीं लग रहा था। मैंने आवाज़ सुनना चाही तो ये आवाज़ वकास की थी। मैं उसे कैसे भूल सकती थी? वो किसी से बात कर रहा था। नादिया, आप कल तक मेरी भाभी थीं, किस्मत के आज तो मेरी बीवी हो। जहाँ मैंने ये जहर निगला है तो तुम्हें बीवी भी बना लूँगा। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, मैं तुम्हें साफ बता दूँ, मगर तुम इसे राज ही रखना। नादिया, तुम्हारा सुहाग लूटने वाला मैं ही हूँ। जहाँ इफ्तिखार भाई नौकरी करते थे वहाँ से एक लड़की मैंने अगवा की थी। वो लड़की ही मेरी कुल कायनात है।
اسے میں ایک لٹیرے کے پاس چھوڑ کر آ گیا۔ بہرحال وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کو جہاں میں چھوڑ آیا ہوں وہ بہت ہی مکار، فریبی اور دغا باز نکلا۔ مجھے بڑا بھروسہ اور فخر تھا، مگر اس نے کمینگی کی حدیں پھلانگ دیں۔ اب مجھے بلیک میل کرتا ہے، روز پولیس کو بتانے کی دھمکی دیتا ہے۔ اس نے اس کے عوض میری بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہا، جس پر میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میرے پاس سوائے اس کی بات ماننے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کوثر کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ چلو جیسی بھی صبح میں ملے گی مجھے منظور ہے۔ میں اسے صبح لینے جا رہا ہوں کہ کوثر کے بھائیوں نے افتخار کو مار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے میرا پتہ نہیں دیا۔ میں نے معلومات اکٹھی کر لی ہیں۔ کوثر کے 2 بھائی قتل کے جرم میں جیل میں ہیں، اس کے والدین مر چکے ہیں۔ اب کوثر کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ وقاص کی زبانیں یہ سن کر مجھ میں کچھ بھی سننے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میں تو تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی، لیکن اب تمہیں محض اپنے بھائی کی وجہ سے اور ان کی بیوی کے لیے زندہ چھوڑ رہی ہوں۔ نہیں کوثر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وقاص کے لہجے میں التجا تھی۔ یہ ٹھیک کہا ہے کہ تمہارے پیار میں بہت بڑی قیمت دی ہے میں نے، مگر تم نے جو کچھ کیا وہ مجھے گوارا نہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے بھی ہو تو میں ایسی محبت پر لعنت بھیجتی ہوں جس میں غیرت اور عزت نہ ہو۔ میں نے وقاص کو کہا اور پھر اپنی دہلیز پر لوٹ گئی، جہاں میرے بھائی میرے منتظر تو نہ تھے، مگر میں انہیں منانے جا رہی ہوں، کیونکہ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔